Good morning, students. Today we are going to learn about this topic in your English grammar, which is called editing. Okay, students, before going to the explanation, I'll tell you what editing actually means. Okay, so it means detecting an error in a sentence. That is, suppose you are given a sentence and you have to find one wrong word in that, and you have to write the correct word against that in that sentence. Okay, so students, there are 10 basic rules of detecting error in a sentence. If you learn these rules, you'll surely able to do the editing correctly. आपके यहाँ इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक में एडिटिंग में देर आर 10 रूल्स. ओके, so those rules are very important, and if you learn those rules you'll be able to crack the question very easily, and you'll be able to do it properly. Okay, so and it's a very important topic for your 9th and as well as 10th. So you have to learn this topic very carefully. Okay, so I'm going to read the rules and explain you, and with that rule I'll give you the example also, and in every example I've written the wrong word. वहाँ पे wrong word लिखा है मैंने, and मैंने explain भी किया है कि why that word will not come there, and उसकी जगह पे कौन सा correct word आएगा. Okay, so please pay very attention while I'll explain you these rules and explain you the examples also. Okay, so we'll start by explaining the first rule. So what the first rule says, it says always put verb, this is verb, and I've written one here, verb first form after to in a sentence. That is, whenever there is this word to. ओके, जब भी आपके सेंटेंस में ये टू वर्ड आएगा, आपको हमेशा इस वर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ओके, वर्ब, यू ऑल नो व्हाट इज वर्ब. वर्ब इज योर एक्शन वर्ड. ओके, सो whenever you are seeing in a sentence there is written to, so उसके बाद हमेशा आप verb की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी. ओके, सो लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल नाउ. I am going to bought a car. अब यहाँ पे मैंने bought लिखा था. ओके, सो bought को काट के मैंने, bought क्या है, bought सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, बट हमने रूल में क्या पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म आएगा. सो I've cut this word bought and I've written buy, which is the first form of this verb. Okay, so is this rule clear? Now we'll move to the second rule. Second rule says that always use verb first after modals in a sentence. So now students, modals you have already learned, but still I'll give you a few examples so that you'll remember what modals are. So modals are basically your auxiliary verbs जो modify करने में help करते हैं sentence में. And what are these modals? Can, could, will, shall, these are your modals. Okay, so जब भी आप सेंटेंस में कहीं भी ये मोडाल्स देखें, कैन, विल, शेल, मस्ट, ठीक है, सो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सेकंड नहीं लगानी है, ना ही थर्ड लगानी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद से वो फॉर्म लगाने. ठीक है, इफ इट इज गिवन रॉन्ग इन अ सेंटेंस, you will cut that verb or you'll write the right one. Okay, now let us look at the example. I cannot lived without you. अब यहाँ पे lived लिखा है मैंने. ठीक है, lived verb की सेकेंड फॉर्म होती है, सो उसको कट करके हम क्या करेंगे, करेक्शन, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. लिव्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लिव. ओके, सो आई कैनॉट लिव विदाउट यू. Second rule is clear. After modals, we'll use verb की first form. Okay. Now the third rule. Third rule says if there is while in a sentence, we always use verb plus ing. So students, you always have to remember that verb की जो first form है उसके साथ ही हम ing लगाते हैं. थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म के साथ कभी ing नहीं लगता है.
Okay, so in this rule it says that when you see there is while in a sentence, while this word, okay, while जब भी आप सेंटेंस में देखो while के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे. जब भी वहाँ पे वर्ब होती है वहाँ पे वर्ब के साथ ing लगती है. ओके, एग्जाम्पल, द फोन रैंग वाइल आई वॉज वॉच्ड टीवी. अब यहाँ पे मैंने वॉच्ड लिखा है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखी है वर्ब की, तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ मेकिंग नो सेंस. ठीक है, सो इसको करेक्ट करके हम कैसे लिखेंगे? द फोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी. फ़ोन रैंग हुआ जब मैं टीवी देख रहा था. इस सेंटेंस का मीनिंग अगर हम क्रैक करेंगे तो ओके, सो मैंने वॉच्ड को कट करके वॉचिंग कर दिया यहाँ पे. ओके, दिस रूल इज क्लियर. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस इज द फोर्थ रूल. फोर्थ रूल में क्या होता है? फोर्थ रूल सेज इज एम आर. दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब. ओके, इज एम आर वॉज. इज एम आर हमेशा हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेजेंट सेंटेंस. ठीक है, इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है विच इज़ अ यूनिवर्सल रूल. आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग प्लूरल इन अ सेंटेंस. सिमिलरली वॉज वर कब लगता है? वॉज तब लगता है जब हम सिंगुलर की बात करते हैं. ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वी आर टॉकिंग इन अ पास्ट टेंस. जब भी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. एंड वर कब लगता है? जब हम प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस में एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट. सेम थिंग. ओके, सो and will be, shall be. Okay, this is the future. So whenever you find these helping verb in a sentence, okay, whenever you find these helping verb in a sentence, always put verb की first form when there is active voice. So students, now you must be thinking active voice. Okay, active voice you all have studied in your junior classes. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपने वॉइसेस पढ़ी थी. ठीक है, एक्टिव वॉइस जो हम मेन सेंटेंस लिखते हैं अपना सिंपल सेंटेंस. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. माय मदर इज कुकिंग फूड. ठीक है, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है. बट अब मुझे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. सो आई विल राइट द फूड इज कुक्ड बाय माय मदर. ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमेशा जो नॉर्मल सेंटेंस है वैसे ही चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू पैसिव वॉइस में हमेशा हम उसको ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, देन द सब्जेक्ट कम्स इन द लास्ट. ठीक है, और हमेशा पैसिव वॉइस की क्या आइडेंटिटी है? वी ऑलवेज यूज बाय, वी ऑलवेज पुट बाय इन इट. ओके, सो now you must have all it must have came little bit in your mind that what is active voice and passive voice. ठीक है, so यहाँ पे क्या रेफरेंस है इन दोनों का? एक्टिव, जब भी हम ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में देखें तो अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, तब तो हम वर्ब प्लस ing लगाएंगे. बट इफ देर इज पैसिव वॉइस, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म पुट करेंगे. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर इट स्टूडेंट्स. इट इज़ अ वेरी important rule. Always be very careful when you are doing editing. आपको बहुत ध्यान से, बहुत एकदम शांत दिमाग रख के वो चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब ये वाली देखें और सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो आप वर्ब के साथ ing लगाएंगे. अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. हाउ? आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, देन इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर. द लेटर वॉज राइटिंग बाय मी. अब मैंने आपको क्या बताया था कि whenever we put by in a sentence, पैसिव वॉइस की आइडेंटिटी क्या है कि उसमें हमेशा by होता है लास्ट में. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट आता है पहले.
तो अब यहाँ पे भी बाय लगा हुआ है, तो ये किसका सेंटेंस है? पैसिव का, एक्टिव का नहीं है, पैसिव का है। ओके, सो पैसिव सेंटेंस में अब यहाँ पे मैंने राइटिंग लिखा हुआ है विच इज़ रॉन्ग। ओके, मैंने एक्टिव वॉइस में बताया था आईएनजी, पैसिव में मैंने क्या बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो इसको कट करके हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट, रोड एंड रिटन। ओके, सो थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दी। सो हाउ विल रीड इट? द लेटर वॉज रिटन बाय मी। लेटर मेरे द्वारा लिखा गया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टिल हियर। ठीक है, ये फोर्थ रूल तक आपको क्लियर होगा। I'll revise it once we do the fifth rule also. ठीक है, so but I hope it's clear till here. Okay, now we'll move to the fifth rule. So fifth rule is very basic, very important, but हमें लगता है कि हम उसमें कभी wrong हो ही नहीं सकते, but most of the students do mistakes in this rule. Okay, so fifth rule says that whenever you find articles in a sentence, ठीक है, articles क्या होते हैं? अब ए एंड द, जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो जब भी आप आर्टिकल्स देखें सेंटेंस में, तो ऑलवेज रिमेंबर आर्टिकल ए जो है, आर्टिकल ए के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? ए कब लगाते हैं हम? व्हेन देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस। ठीक है, जब भी आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड होता है, उसके पहले हमेशा अ लगता है। व्हेन देयर इज वॉवल साउंड यू ऑलवेज पुट एन। ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलर, समथिंग वेरी स्पेशल, वी पुट द इन अ सेंटेंस। ओके, ये इट्स अ वेरी बेसिक रूल, बट हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी एंड वी डू इट रॉन्ग। ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट द आर्टिकल्स। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, बट वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so students, let us come, I'll give you a quick recap what we have studied till here, till fifth rule. First rule में हमने क्या पढ़ा था कि whenever you see to in a sentence, always use verb, first form of a verb. Okay, and then second rule, whenever you see modals in a sentence, always use the first form, same जैसे हमने फर्स्ट रूल में देखा था। Then जब आप सेंटेंस में वाइल देखते हैं, व्हेन यू सी वाइल इन अ सेंटेंस, वाइल अगर कहीं भी लिखा होता है, ऑलवेज रिमेंबर वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आता है। ओके, जब भी आप वाइल देखते हैं इन अ सेंटेंस। सिमिलरली फोर्थ रूल सेज, जब भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आप देखते हैं, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, तो एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। एंड इफ़ द सेंटेंस इज़ ऑफ पैसिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सिंपल। देन व्हाट वाज द फिफ्थ रूल? फिफ्थ रूल वाज व्हेनेवर यू फाइंड आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल ए, इफ देर इज ए, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट कॉन्सोनेंट। ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, अगर वहाँ पे रॉन्ग लिखा होता है तो आप कट करेंगे और आप ए लिखेंगे। इफ़ देर इज़ वॉवल्स, वॉवल्स के साथ आप एन लगाएंगे, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग समथिंग पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट तो आप द लगाएंगे। ओके, आई होप वी आर क्लियर टिल फिफ्थ रूल। नाउ विल मूव टू द सिक्स्थ वन।